Assalamualaikum students. Today we are going to learn poem named Basket Full of Moonlight. Now, Basket Full of Moonlight. Now, this poem is a request from a child to the moon. Now, let's see what the poet says. First, I'll read the poem. O moon, give me moonlight, basketful or two baskets full with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to show many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. And he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Now this poem is written by Sunil Sharma. And this poem is merely a request or a wish from a boy to the moon. Let's see what the boy requests to the moon. He says he wishes to the moon, O moon, give me moonlight, basketful or two baskets full with seeds of moonlight. Here, the child requesting to the moon and is directly addressing to the moon. When a person in a poem, a person or a poet addresses to something like that, this is called O moon. Here, the poet directly addressing to the moon. The poet uses figure of speech here, and the figure of speech here is apostrophe, though it is written as apostrophe, but it reads apostrophe. O moon, give me moonlight, basketful or two baskets full with the seeds of moon. The child is requesting to the moon to give him moonlight, basketful और two baskets full. एक बास्केट भर करके जो है वो चांद की रोशनी उसके चांद से मांग रहा है, और two baskets full या दो जो है वो बास्केट फुल चांद की रोशनी मांग रहा है. Not only this, that is requesting to moon to give him moonlight only, but also seeds of moonlight. सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जो है चांद की रोशनी मांग रहा है, as well as वो चांद के रोशनी के बीज भी मांग रहा है. Second stanza. From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. अच्छा भाई क्यों मांग रहे हैं? First of all, what does the poet wish to get from the moon? The poet wishes to get moonlight as well as seeds of moonlight from the moon. Now come to next stanza. From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. From his village to the city, इसके गांव से लेकर के जो है शहर तक, from the sides of the path, रास्ते के दोनों जाने
I want to show many small moons of light. Here, small. This word is repeating. Small moons of light. It means that when two words are repeating, the figure of speech is a repetition. In this line, the poet using figure of speech called repetition. From the city to my village on the sides of the path. अच्छा बोल रहा है, चांद से जो है वो गुजारिश कर रहा है to give him moonlight along with seeds of the moon. What does he do with those seeds? He says from the city to my village on the sides of the path. शहर से लेकर उसके गांव तक, उसके गांव से लेकर शहर तक, दोनों जानिब रास्ते के. He want to show many small moons of light. चांद के जो छोटे चांद जो है वो गाना चाहता है. No, this boy resides in a village. He is an innocent boy. ये बच्चा जो है वो गांव में रहता है और एक मासूम सा बच्चा है. उसको एक तरीका मालूम है, सोइंग, फार्मिंग, जिससे कोई चीज जो है जमीन में जो है डाली जाती है, बोई जाती है और उससे जो है कोई एक चीज निकल करके बाहर आती है. वैसा ही समझ रहा है. While sowing seeds of moonlight, चांद की रोशनी के अगर बीजों बोएगा तो उसमें जो दरख्त निकल कर आएगा, जो पौधा निकल कर आएगा, वो चांद की रोशनी देने वाला होगा. The whole village goes to the city daily to work. And he further says, on daily basis, रोजाना जो है इसके गांव से लोग निकल करके जो है शहर में जाते हैं, काम के लिए जाते हैं. It becomes dark on its way back as my village is quite far. And he says the city is far away from his village. When people complete their work at city and try to return back to their village, it becomes dark. बहुत अंधेरा हो जाता है. The route is tough and full of snakes and scorpions. वो जो रास्ता which takes from his village to the city, which people of his village uses daily to walk, it is tough. बहुत जो है वो खतरनाक बन जाता है, बहुत मुश्किल तरीके हार्ड बन जाता है. Why? Full of snakes and full of scorpions. वहां पर जो है उस रास्ते पर जब रात को लौट कर उनके गांव के लोग वापस आते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड रास्ता है, डेंजरस रास्ता है. That route is having full of snakes and scorpions. The route is tough. जो पूरा वो लाइन पढ़ते हैं, the route is, और आगे जब जाते हैं तो ये snakes and scorpions ऐसा आ रहा है. Snakes and scorpions ऐसा जब हो रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं that two words, snake and scorpion, these are starting with the same letter S and pronouncing same SS. So this is a figure of speech and the name of this figure of speech is alliteration. Alliteration. The route is tough and full of snakes and scorpions. ये जो रास्ता है बहुत मुश्किल तरीन है, इसमें जो है बहुत सांप हैं या बिच्छू हैं. And also this route is dark. रात में जब लौट कर आता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है और बहुत मुश्किल है, डेंजरस बन जाता है. कैसा? Having full of snakes and scorpions. वहाँ पर बहुत सारे सांप हैं, बहुत सारे बिच्छू हैं. रात के वक्त अंधेरे में हो सकता है वो जो लोग शहर से काम के बाद जब वापस आते हैं उनको जो नुकसान पहुंचा सकता है. नीदर बस नॉट कार्ट फ्लाइज. हमारे अगर हम देखते हैं तो इतना दूर भी अगर
वो जगह क्यों ना होती हो, हम जो है वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके जाते हैं, या फिर जो है बस हो सकती है, इसका इस्तेमाल करके जा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर शायर इस तरह से बोल रहा है दैट नीदर बस नॉर कार्ट फ्लाइज, इट मींस दैट दिस इज अ वीक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिज विलेज। यहाँ पर जो है वो आमद रफ्त का जो जरिया है बहुत कमजोर है, जहाँ पर बस भी नहीं चलती है और न जो है कोई एक घोड़ा गाड़ी भी चलती है या ऐसी कोई गाड़ियाँ भी होती हैं वो चलती है। अच्छा, यहाँ पर फ्लाइज करके वर्ड आया और उसको वहीं पर मीनिंग बाजू में दिया गया है, ट्रैवल्स रेगुलरली ओवर अ रूट, किसी एक रास्ते पर जो है मुसलसल चलने वाला, लगातार जो गाड़ियाँ चलती हैं उसको बोलते हैं। वहाँ पर जो है बस भी नहीं चलती है और दूसरी जो है वो गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं। When my father returns home, I am asleep. बच्चे के ये जज्बात हैं। एक तो ये कि his father वो काम के लिए जो है शहर को जाता है, his father works in a city, and when he comes back it becomes dark and returns back using the route which is dangerous, having full of snakes, full of scorpions. And when my father returns home, I am asleep. बच्चा बोल रहा है कि डैड इज फादर, जब कभी ये रोजाना ऑन डेली बेसिस व्हेन हिज फादर रिटर्न्स होम, एट दैट टाइम ये सोया हुआ होता है, व्हेन आई एम अस्लीप। जब इसके बाद लौटकर घर को वापस आते हैं तब ये सोया हुआ होता है। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग। और जब ये इसके बाद अपना गांव छोड़ करके जो है काम के सिलसिले में जब शहर को चले जाते हैं, एट दैट टाइम ही वाज आल्सो स्लीपिंग, उस वक्त भी सोया हुआ था। अर्ली इन द मॉर्निंग इसके वालिद जो है वो अपना गांव छोड़ करके, इसका घर छोड़ करके वो काम को चले जाता है, तब ये सोया हुआ होता है। एंड व्हेन हिज फादर रिटर्न्स होम एट द नाइट, दैट टाइम आल्सो यस ही वाज asleep, उस वक्त भी जो ये सोया हुआ होता है। O moon, give me a basket full of moonlight on loan. और यहाँ पर जो वो चांद से फिर एक दफा जो है गुजारिश कर रहा है, इज रिक्वेस्टिंग और विशिंग फ्रॉम moon to get moonlight. Now this time he wants it on loan. तो लोन पे मांग रहा है, उधार मांग, कर्जे पर मांग रहा है। और यहां पर भी अगर हम देखते हैं, गिव मी ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। मी और मूनलाइट दोनों जो है वो एम से शुरू है, और एम से जो यहाँ पर एक ही लेटर से दो वर्ड अगर शुरू हो रहे हैं तो फिर से वही बात आती है कि यहाँ पर जो है वो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो अलिट्रेशन है। एम का जो है वो दोहराया गया है, एम से मी आ रहा है और एम से मून आ रहा है। ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। चांद से जो है वो गुजारिश कर रहा है, चांद को गुजारिश कर रहा है दैट टू गिव हिम मूनलाइट ऑन लोन, उधार मांग रहा है, कर्जे पर मांग रहा है। आई वांट टू लाइट द डार्क रूम। अब इस वक्त जब वो बोल रहा है कि वो कर्जे पर मूनलाइट मांग रहा है तो वो क्या करेगा? He wants to light the dark room. यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, लाइट, डार्क। अगर इसमें इस लाइन में हम देखते हैं तो दो वर्ड आ रहे हैं, लाइट एंड डार्क। I want to light the dark room. वो जो रास्ता अंधेरा है, जब रात को इसके ऊपर लौटकर वापस आते हैं वो तो अंधेरा वाला हो जाता है, वो रास्ते को जो है ये रोशन करना चाहता है। लाइट जो रोशनी को हम बोलते हैं और डार्क अंधेरे को बोलते हैं। इसी एक ही लाइन में जो है व्हेन पोएट इज यूजिंग टू ऑपोजिट वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स इन अ लाइन, इट इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। और ये फिगर ऑफ स्पीच जो होती है उसको एंटीथेसिस कहा जाता है। एंटीथेसिस, आई वांट टू लाइट द डार्क रोड सो दैट माय फादर रिटर्न्स अर्ली। ये वो रास्ता जो अंधेरा वाला है इसको रोशन करना चाहता है, और रोशन करके जो है उसमें अपनी ख्वाहिश है, अपना इरादा है। और वो क्यों रोशन करना चाहता है? सो दैट माय फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि इसके अब्बा जो है लौट कर वापस
जल्दी आ जाए। I too want to hear fairy tales and stories from him. वो चाहता है, वो बच्चे की ख्वाहिश है, आरज़ू है कि अपने अब्बा के पास से जो है फेरी टेल्स सुनना चाहता है। अच्छा, फेरी टेल, परियों की कहानी हम बोलते हैं। परियों की कहानी जो है वो हमको भी सुनना अच्छा लगता है, हमने भी सुनी होंगी। जैसा हमारे जो है वो ग्रैंडफादर्स ने जो है ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ने हमको सुनाए होंगे, हो सकता है दादा ने सुनाए होंगे या नाना ने सुनाए होंगे या दादी ने सुनाए होंगे या नानी ने सुनाए होंगे। एट टाइम्स हमारे मदर ने हमको सुनाया होगा या हो सकता है हमारे अब्बा ने भी हमको सुनाया होगा। तो आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स, मैं भी चाहता हूँ बोले कि वो फेरी टेल्स सुनूं, मैं भी चाहता हूँ। इट मीन्स दैट जैसा तुम लोग चाहते हो, दूसरे बच्चे जैसा जो है फेरी टेल्स सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, वैसा मैं भी जो है अपने अब्बा से कहानी सुनना चाहता हूँ। और फेरी टेल्स, परियों की कहानियां हमको अलग ही दुनिया में लेकर जाती है। अब मैजिकल स्टोरीज अलग ही दुनिया में लेकर जाते हैं, जिसके जो किसी एक इंसान के पर होंगे, किसी एक जानवर के पर होंगे या कोई अजीब दुनिया होगी जिसको हमने सोचा भी नहीं होगा, उसको हम फेरी टेल बोलेंगे। एंड स्टोरीज, हो सकता है स्टोरीज ये हकीकत पर भी मबनी होंगी, जैसा हमारे पेरेंट या हमारे टीचर्स हमको कोई चीज़ सिखाते हैं, स्टोरी बोलते हैं हमको इंस्पायर करने के लिए, हमें जो है कोई चीज़ हमें जो पैदा करने के लिए। जैसे सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरीज होती है या फिर किसी ऐसे शख्स की स्टोरी होती है जिसने जिंदगी में जो है नाकामयाबी उठाई होगी। इफ सपोज योर टीचर और योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स दे आर टेलिंग स्टोरीज ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, इसके पीछे जो वजह होती है दैट यू टू वांट टू बी सक्सेसफुल, वो जो है तुमको या हमको जो है वो कामयाब देखना चाहते हैं। और एट टाइम्स किसी ऐसे शख्स की कहानी को सुनाते हैं जो दुनिया में नाकामयाब हुआ है। फ्रॉम दिस वो चाहते हैं कि हम जो है ये गलती ना दोहराएं, हम जो है वो नाकामयाब ना रहें। जैसे कहानियां आमतौर पर जो सुनने को आती है, तो एक बच्चा जो है वो गरीबी से निकल करके जो है बहुत अमीर बन गया, बहुत तरक्की कर ली। स्पोर्ट्समैन की बहुत सारी बातें आती हैं, इसमें एक धीरू भाई अंबानी की भी बात आ जाती है। किसी ने अगर कहानी सुनाई होगी कि वो इतना बड़ा उनका नाम है, आज उनका खानदान का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी शुरुआत जो है बहुत एक गरीबी में हुई थी या बहुत जो है वो हल्का काम किया करते थे, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भाई टेलिंग दिस स्टोरी हमारे पेरेंट भी चाहते हैं कि हम भी तरक्की करें, हम भी जो है वो नीचे से निकल करके जो है बहुत कामयाबी के जो बड़े ऊंचा मुकाम जो है वो हासिल कर रहे हैं। In the last stanza, the poet says, "O moon, give me a basket full of moonlight." लास्ट स्टांजा में जो है और बच्चा जो है चांद से गुजारिश कर रहा है to give him basket full of moonlight, वो जो है चांद से basket full of moonlight मांग रहा है। I want to sow seeds of moon on the sides of the path. और यहाँ पर भी लाइन में अगर देखते हैं, I want to sow seeds, sides, ये तीन वर्ड आएगा, sow, seeds and sides, तीनों भी वर्ड जो है वो एस से शुरू हो रहा है। दिए यहाँ पर भी जो है पोएट ने वो फिगर ऑफ स्पीच यूज की है जिसको हम अलिट्रेशन बोलते हैं। I want to sow seeds of moon on sides of the path. रास्ते के दोनों जानिब जो है वो मून, चांद के जो है वो या चांद के रोशनी के जो है या छोटे छोटे चांद के जो है वो बीज बोना चाहते हैं, जिससे जो है वो चांद के रोशनी का दरख्त बन जाए, चांद का दरख्त बन जाए और जिससे जो है वो रोशनी आ जाए और रास्ता जो है वो पूरा उजाला वाला हो जाए। दिस इज मेयरली और सिंपल पोयम। इन दिस पोयम द पोएट विशेस फ्रॉम द मून टू गेट मूनलाइट। और ये पोयम का अगर पैटर्न हम देखते हैं तो इसमें हमको जो है एक बच्चे की जो है रिक्वेस्ट, एक ख्वाहिश, एक मासूम सी ख्वाहिश जो है अपने को समझ में आए। एक बच्चा जो है अपने एक मून से जो है वो ख्वाहिश जाए, ये बात जो है हमको इसमें से समझ में आ जाती है। और ये जो पोयम है इसमें हमको जो है वो फ्री वर्स वाली पोयम है, जिसमें ये स्टांजास अगर देखते हैं तो अनइवन है, इसमें बैलेंस नहीं है। दिस वे वी केम टू द एंड ऑफ दिस पोयम, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट।